والوں, اے بوریا بستر اور اسٹوپ لے کر چولہے لے کر جماعتوں میں جانے والوں, 3 دن اور 40 دن کے چلے کرنے والوں, تم اس لیے جاتے ہو تاکہ لوگ اسلام کے قریب ہو جائیں. تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف محمد رسول اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو, صرف نبی کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لو. لوگ تمہیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتے چلے جائیں گے, خود بخود اسلام قبول کرتے چلے جائیں گے. اسلام ہم دکھا کر دوسروں پر عمل کریں, دوسرے ہمارے قریب آئیں, لیکن ہماری عادتیں, ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمارے حالات کو دیکھ کر لوگ ہم سے بھاگ اور رہے ہیں, ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان دور ہونے والوں کا خمیازہ, ان دور ہونے والوں کا عذاب بھی ہمارے اوپر مسلط ہوگا. میرے بھائیوں, ہم اس عذاب سے بچیں گے نہیں. جو ہمارے قریب آنا چاہتے تھے, ہم ان کو اپنے عادتوں سے, ہم ان کو اپنے اخلاق اور کردار سے ہم اس کو دور کر رہے ہیں. اس کا عذاب بھی اللہ رب العالمین ہمیں دے گا. جس قوم کو دیکھ کر, سن لیجئے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں, اسلام اللہ کی قسم نبی اکرم کے معجزے دکھانے سے نہیں پھیلا. آپ سمجھتے ہیں کہ چمتکار دکھانے سے اسلام پھیلا؟ نہیں, خوب دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیاسے تھے لوگ, کافروں نے کہا اے محمد بتا تیری قوم کے لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں, کیسے پانی پلائے گا, پانی ہمارے پاس ہے. نبی اکرم نے فرمایا بسم اللہ, اور آپ کی انگلیوں کے پور سے پانی کے چشمہ بہنے لگتا ہے, پانی ٹپکنے لگتا ہے. سارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے گرنے والے پانی کو پی رہے ہیں, لیکن نبی کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کافر اسلام نہیں لا رہے ہیں. وہ نبی سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے, اس چمتکار کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی اسلام نہیں لا رہا ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ محمد بتا دو کہ میری انگلی میں, میری مٹھی میں کیا ہے, اگر بتا دو گے تو ہم اسلام لے آئیں گے, ایمان لے آئیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مٹھی کو اپنے کان میں لگا, تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں مٹھی میں بند ہیں وہ میرا کلمہ پڑھ رہی ہیں. ابو جہل نے جب مٹھی کو کان میں لگایا تو کنکریوں سے, پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی آواز آ رہی تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ابو جہل نے نبی اکرم کا یہ معجزہ دیکھا کہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا. کون کہتا ہے کہ چمتکار دیکھنے سے اسلام پھیلا, معجزوں سے اسلام پھیلا؟ خندق کا موقع اٹھاؤ, صحابہ کرام بھوکے ہیں, اللہ کے نبی بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہے, دیکھیے مجھے بھوک کی شدت ہے, خندق نہیں کھودی جا رہی ہے, اب کام نہیں ہو رہا ہے, کچھ مل جاتا کسی کے پاس سبدو ہو, کھجور ہو, ایک گھونٹ دودھ ہی مل جائے. اللہ کے نبی اپنا پیٹ کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایک پتھر باندھے ہو, ذرا میرے پیٹ کا حال دیکھو. آپ نے جب اپنا کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندے ہوئے تھے کہ دیکھو میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں, یہ مت سمجھو کہ میں خود کھا پی کر آیا ہوں اور تمہیں بھوکا کام کرنے پر مجبور کر رہا ہوں. یہ حالت جب حضرت عبداللہ ابن جابر نے دیکھی تو سیدھے گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے بیوی آج یہ کنڈیشن دیکھی ہے. فرمایا ایک ہی بکری ہے, جلدی سے ذبح کر دیا. فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے نبی کے کان میں کہہ دینا آپ اپنے ساتھ 5-6 لوگوں کو لے کر چلیں, بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے. دیکھو خندق کھودنے والے 300 صحابہ ہیں, اگر سب کو لاؤ گے تو دیکھو گھر میں بے عزتی ہو جائے گی. صرف چند لوگوں کو, یعنی نبی اکرم اپنے ساتھ خاص لوگوں کو 5-6 لوگوں کو لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر آتے ہیں, عبداللہ ابن جابر, اور کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے ابھی بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ذبح کر دیا ہے, ہماری بیوی نے کہا ہے 4-5 آدمی جو آپ کے پاس ہوں آپ ان کو لے کے چلیے اور گھر میں ہم کھانا کھا لیتے ہیں. اللہ کے نبی کے کان میں کہا جا رہا ہے 4-5 لوگوں کو لے کے چلیے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے خندق والو ادھر آؤ, حضرت جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹی گم ہو جاتی ہے, کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی, ہم تو 4-5 لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ 300 آدمیوں کو دعوت. فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر اور اپنی بیوی سے کہہ دینا پڑوس کی ایک عورت کو بلا لاؤ, وہ روٹیاں بیلتی رہے تو
तुम तवे पर रखती रहना बस। और मैं आ रहा हूं। हजरत जाबिर आते और अल्लाह के नबी के का यही फरमान सुना देते हैं अपनी बीवी को। बीवी कहती है अल्लाह तुम्हें गारत करे। ये उस जमाने में जुमला चलता था, सगिलत का सवाकिल, खोने वाली तुझे खो दे, यानी तेरी माँ तुझ पर रोए, यानी तू मर जा। पकाना तो मुझे है, रोटी तो मुझे बनाना, सालन तो मुझे बनाना है, खाना तो हमें तैयार करना है, और आप 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, क्या होगा? फरमाया अरे मेरी बीवी मुझे बद्दुआ मत दे। अल्लाह के रसूल को मैंने 5-6 ही लोगों को कहा था, लेकिन नबी अकरम ने अनसुनी कर दी। 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं। अब जैसा उन्होंने कहा वैसा कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की बीवी से कहते हैं तुम पर्दे में चली जाओ। फिर हांडी का ढक्कन खोलते हैं और उसमें थुकथुकाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, थुकथुकाते हैं और कहते हैं कि आए जाबिर की बीवी तुम रोटी बनाती जाओ, आग पर सेंकती जाओ, देती जाओ। अल्लाह की कसम जो खाना 4-5 लोगों के लिए था वो 300 लोगों ने पेट भर के खाया, फिर बच गया। फिर जाबिर के घर वालों ने खाया और उस इलाके के गरीबों में भी बांटा और तकसीम किया। अल्लाह की कसम ये जिंदा जाबिर मौजिज़ा देखने के बाद भी खंदक खोदने वाले वो काफिर ईमान नहीं लाए। चमत्कार देखने से और चमत्कार करने से कोई आदमी मुसलमान नहीं होता है। आप कितना ही लोगों को कुछ भी दिखाएं, इस्लाम चमत्कार से नहीं फैला है। हजारों की भीड़ है, कहती है कि मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, हम ईमान लाएंगे। अल्लाह की नबी उंगली का इशारा कर देते हैं, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा चांद के 2 टुकड़े, लेकिन इस चमत्कार इस मौजिज़े को देखकर भी कोई इस्लाम नहीं लाता है। इस्लाम नहीं फैला है मौजिज़ों के को दिखाकर, इस्लाम नहीं फैला है चमत्कार दिखाकर, इस्लाम तो फैला है अपना अमल दिखलाकर, इस्लाम तो फैला अपना किरदार दिखलाकर। इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से भी नहीं फैला, इस्लाम फैला अपने आला अखलाक और आला कैरेक्टर और अच्छे आदत की वजह से। नबी अकरम की अच्छी आदतों को देखा, फौरन लोग इस्लाम लाते चले गए। मेरे भाइयों याद रखिए, चमत्कार और मौजिज़े अगर इस्लाम के फैलने का जरिया होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर मौजिज़े दिखाने वाला कौन होता? मेरे भाइयों कुरान से बड़ा मौजिज़ा फिर क्या होता? लेकिन आप याद रखिए कि इस्लाम मौजिज़ों से को दिखाकर नहीं फैला, इस्लाम फैला है तो जो दावत आप दे रहे हैं उस पर खुद अमल करिए। आपके अखलाक अच्छे हो, आपका कैरेक्टर अच्छा हो, आपका स्वभाव अच्छा हो, आप बोले तो फूल बरसे, आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। इस आला अखलाक और आला किरदार की वजह से इस्लाम फैला है। इस्लाम नाम है आला अखलाक का, इस्लाम नाम है आला किरदार का। आज हमारे अमल देख लो, इस्लाम की जिंदगी में हम ढल जाए तो लोग हमें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएं। इस्लाम हम दिखाकर दूसरों पर अमल करें, दूसरे हमारे करीब आए, लेकिन हमारी आदतें, हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमारे हालात को देखकर लोग हमसे भाग और रहे हैं, हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। इन दूर होने वालों का खमियाजा, इन दूर होने वालों का अज़ाब भी हमारे ऊपर मुसल्लत होगा। मेरे भाइयों हम उस अज़ाब से बचेंगे नहीं। जो हमारे करीब आना चाहते थे हम उनको अपने आदतों से, हम उनको अपने अखलाक और किरदार से हम उनको दूर कर रहे हैं। उसका अज़ाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, ये हालत आज हमारी हो चुकी है। बात कहां की कहां चली गई तो माज़ इब्न जबल की बात से हम उधर चले गए। आपने कहा ना आए माज़ ऐसा मत करना, गौर कीजिए हिकमत क्या चीज है। आपने कहा है तो 5 चीजें इस्लाम का पिलर्स, लेकिन जब तुम यमन में जाओ तो यमन के लोगों से कहना कि लोगों तुम एक अल्लाह की इबादत करो, पहले उनको कलमे की दावत देना। जब वो तौहीद में मजबूत हो जाए, जब वो कलमा पढ़ लें, तौहीद के मतवाले बन जाए, तौहीद अपने अंदर वो जागुज़ी कर लें, तौहीद अपने अंदर पैबंद कर लें, तो आए माज़ जब तुम देखो कि वो तौहीद में पक्के हो गए हैं तो फिर उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, जब वो नमाज में पक्के हो जाए, जब
जब वो नमाज के पाबंद हो जाएं, जब वो पांचों वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करने लगे और जब वो उसके आदी हो जाएं, तो फिर उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर रमजान के, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की गई है। इतना इतना माल, इतने इतने ऊंट, इतनी इतनी गायें, इतनी इतनी बकरियां, इतनी इतनी जमीन में पैदावार पर इतनी इतनी ज़कात, तब तुम उनको बताना। डायरेक्ट नहीं, जब वो नमाज के आदी हो जाए, पुख्ता हो जाए, पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगे और नमाज को अपनी जान और अपने माल से ज्यादा महबूब समझने लगे, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है। जब वो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात भी देने लगे और वो अपने माल को अल्लाह की राह में बेदरा खर्च करने में के माहिर हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, आदी हो जाए, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रमजान के एक महीने के रोजे भी फर्ज किए हैं। जब वो रोजा भी रखने लगे और रोजे के भी आदी हो जाएं, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने जिंदगी में एक बार हज बैतुल्लाह खाने काबा की ज़ियारत यानी हज भी फर्ज किया है। चाहे इसको करने में कई साल लग जाएं, लेकिन एक एक करके उनको बुलाना, पांचों चीजें बैक वक्त एक साथ पेश मत कर देना। अगर तुमने पांचों चीजों को एक साथ पेश कर दिया तो लोग भाग जाएंगे, फिर इस्लाम को बोझ समझेंगे अपने ऊपर और कोई भी आदमी इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। देखिए कितनी हिकमत भरी बात बताई थी अल्लाह के नबी ने, एक एक करके बुलाओ, एक एक करके बुलाओ, एक एक करके बुलाओ। होशियारी, दानाई हमने छोड़ दी है, अक्लमंदी हमने छोड़ दी है। जहां नेकी की तरफ हमें बुलाना है होशियारी से और अक्लमंदी से, एक चीज बताऊं आपको, वहीं लोगों को बुराइयों से भी रोकना है बड़ी अक्लमंदी से और दानिशमंदी से। बैक वक्त नहीं रोक सकते आप। कितनी बार बोल चुका हूं, जो बारातों का सिस्टम है और इतने इतने लोग बाराती बन के जाते, आप रोक देंगे? बैक वक्त नहीं रोक पाएंगे। और फिर एक बारात में 50 किस्म की खुराफात आप रोक देंगे? बुराइयों को भी रोकने में बड़ी हिकमत होनी चाहिए। और उसका एक वाकया आपको सुना दूं, सुना होगा आपने, लेकिन मैं सुनाता हूं, जरा सुनिए। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता है, अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स, और आकर कहता है कि अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की इजाजत दीजिए। इस चीज को समझने की कोशिश करिए आप। इजाजत किसकी मांग रहा है? ज़िना की। और मांग किससे रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो चीजें समझ लीजिए, पूरी तफसील समझ में आ जाएगी। इजाजत किसकी मांग रहा है? ज़िना की। तो मांग किससे रहा है? नबी अकरम से। इजाजत किस चीज की मांग रहा है? जो सबसे गंदा काम। और इजाजत किससे मांग रहा है? जो कायनात की सबसे महबूब और प्यारी हस्ती। दोनों चीजों को देखिए आप। सबसे गंदा काम जिना, और जिना की परमिशन किससे मांग रहा है? जो कायनात की, दुनिया की सबसे ज्यादा महबूब और प्यारी हस्ती। अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दी। मुसलमान है, सहाबी है, इस्लाम लाया, नबी को देखा तो सहाबी हो ही गया। सहाबी है, नबी इस्लाम लाया, लेकिन नया नया है, नया नया है। अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए मुझे, किस बात की? मुझे जिना करना है। दूसरे साहबा जिना की इजाजत कोई भी मांगे। यहां तो कोई बीड़ी पीते आ रहा है, मौलाना जर्जीस को देख रहा हूं। अदब, एहतराम, ठीक। सोचिए कि वो कैसी कौम थी जो जिना की इजाजत मांग रही है, और किस कौम को सुधारने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा गया, जो ये भी नहीं जान पा रही है कि जिना की इजाजत अब किससे मांग रहे हैं। सोचो कैसे लोग रहे होंगे वो। और समझाने वाला साहबा कर रहे, ये तो डांट रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखो। आपने सहाबा से कहा नहीं,
डांटो नहीं। आप भी कह सकते थे चुप चुप चुप, कैसी इजाजत मांग रहा है, आप कुछ भी कह सकते थे, आप नबी थे, नबी का मकाम बड़ा था, आप डांट सकते थे सहाबी, लेकिन आपने नहीं डांटा। आपने साहबा से कहा नहीं, और जो जिना की इजाजत मांग रहा था उससे क्या कहा, उदनु मिन्नी, मेरे करीब आओ और पास आ जाओ मुझसे, करीब बिठा दिया। सहाबा बैठे हैं और जो जिना की परमिशन मांग रहा था उसको अपने करीब कर लिया। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जिना की परमिशन मांग रहा है एक सहाबी, और अल्लाह के रसूल उसको, सहाबा घूर रहे हैं, सहाबा बुरी नजरों से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सहाबा पर कयामत फट पड़ी, जमीन फट पड़ी और सहाबा फंस जाए, ऐसा लग रहा था कि कितने गंदे काम की इजाजत किससे मांग रहा है। सहाबा को ऐसा महसूस हो रहा है, और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बैठा, आपने कहा इधर आओ, और अल्लाह के रसूल उसको करीब कर रहे हैं, मस्जिद में भी है और नबी के करीब भी है। आपने कहा अब बोलो, क्या बोलते हो? अल्लाह के नबी हो, कोई है? अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी फूफी के साथ, अपनी खाला के साथ ये पसंद नहीं कर सकते? नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हो, अगर कोई दूसरा तुम्हारी माँ के साथ जिना करे तो पसंद करोगे? नहीं। दूसरा तुम्हारी बहन के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे? नहीं। दूसरा तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे? नहीं। दूसरा खाला के साथ, फूफी के साथ गलत काम करना चाहे तो पसंद करोगे? का नहीं। फरमाया फिर तुम जिस लड़की के साथ जिना की परमिशन मांग रहे हो वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की चची होगी, किसी की खाला होगी। फिर उसको अगर पता चलेगा कि तुमने ऐसा किया है तो वो कैसे पसंद करेगा कि हमारी बहन के साथ जिसने मुंह काला किया वो इस दुनिया में जिंदा रहे? वो कैसे पसंद करेगा जिस तरह तुम नहीं चाहते हो कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी खाला और मेरी फूफी के साथ कोई गलत काम करे, तो दूसरा कैसे गवारा करेगा कि तुम किसी की माँ, बहन, बेटी के साथ गलत काम करो? अंदाज अच्छा था, दिल को छू जाने वाला था।
सलमा का एक बेटा दूसरे शौहर से था जिसका इंतकाल हो चुका था, और उस इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी ने उम्मे सलमा से निकाह किया। तो उम्मे सलमा पहले शौहर से जो बच्चा था अपना बेटा, उसको भी अपने साथ ले आई थी, और जब अल्लाह के रसूल के निकाह में आई तो जाहिर है कि उस बच्चे को उम्मे सलमा अपने पास रखती थी। अब वो नबी का भी बेटा हो गया, गर्चे नबी उसके बाप नहीं है लेकिन माँ तो उसकी उम्मे सलमा है, तो नबी ही उस बच्चे को पालेंगे और पोसेंगे, क्योंकि एक औरत शादी के बाद अपने उसी हस्बैंड के साथ रहेगी जिसके साथ उसने निकाह किया है, और उस बच्चे को वही पालेगा जिसने उसकी माँ के साथ निकाह किया है। अल्लाह के नबी वो बच्चा चूंकि देहाती माहौल से आया था, इसलिए खाने पीने का तरीका नहीं जानता था। 7-8 साल की गोया की उम्र रही होगी, वो खाना खाने के लिए बैठा तो बैठने का तरीका भी सही नहीं था। जब खाना सामने आया तो उसने पूरा का पूरा हाथ बीचों बीच थाली में डाल दिया। हिकमत क्या है? हिकमत सोचिए, आज थोड़ी सी बात पर कितना बड़ा रिएक्शन हो जाता है, कितना बड़ा रिएक्शन। अगर आपकी मस्जिद के बाहर कोई खिंजीर की का गोश्त फेंक दे तो फौरन लड़ाई और झगड़े पर आमादा हो जाएगी कौम। अभी कोई आदमी कुरान करीम को लेकर सड़कों पर निकलकर उसकी बेहुरमती करने लगे, फौरन सड़कों पर निकल आएगी ये कौम। अभी थोड़ी देर के लिए कर्नाटक के उस मामले को नजर में रखिए कि हिजाब पहनकर जाने वाली उस लड़की को हिजाब से रोक दिया गया, नहीं पहनने देंगे। उस लड़की के हिजाब से रोकने का रिएक्शन आपके कलकत्ता की सरजमीन तक पर दिखाई दिया कि औरतों ने भी हिजाब के फेवर में जुलूस निकाला।
تم